औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा, दोस्त और वो लोग जो बायोलॉजी से इंटरेस्ट रखते हैं, उनको मैं अपने चैनल बायोलॉजी विद आबिद मलिक के लेसन नंबर 2 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में वेलकम करता हूँ। इससे पहले कि हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को स्टार्ट करें, हम कल वाले लेसन को रिव्यू कर लेते हैं। कल हमने जो लेसन लिया था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी सर एलिमेंट। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में सबसे पहले हमने साइंस को डिफाइन किया था। अगर हम सिंपली रिव्यू करना चाहेंगे तो साइंस इज अ नॉलेज इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स एंड आर डन एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन to understand the nature. That was the one definition of the science. Then secondly, we try to define the biology. Biology simply is a scientific knowledge of life. Secondly, we see the branches as well applications of biology. As you are well aware, we have already seen that applications of biology can be seen in the health, food and environment areas. Where is the concerned divisions of biology? There are three main divisions which we have already studied. One is the zoology, second is the botany, and third is the microbiology. Zoology is the knowledge of animals. On the other hand, botany is the knowledge of plants. Botany is the study of plants. And thirdly, microbiology is the study of microorganisms. अगर इन हम तीन ब्रांचेस को तमाम एस्पेक्ट्स को सामने रखते हुए स्टडी करें तो हम इन साइंस की बायोलॉजी की इन ब्रांचेस को मज़ीद फर्दर और ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं, जो आज हमारा टॉपिक है। और इसमें हमने कोशिश करनी है कि जो अदर ब्रांचेस हैं जिनमें हम ऑन लार्ज सिनेरियो अदर एस्पेक्ट्स को स्टडी करेंगे, उनको देखते हैं। उनमें पहला नंबर मॉर्फोलॉजी है, सेकंड एनाटॉमी है, हिस्टोलॉजी है, सेल बायोलॉजी है, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, टैक्सोनॉमी, पैलियोंटोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, सोशो बायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, entomology and some other branches like molecular biology as well as biochemistry is also be there. अब हम आते हैं अपने इन जो ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, इनको इन डिटेल देखते हैं, इनकी डेफिनेशंस को देखते हैं और हमारे जो बेसिक आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम इन ब्रांचेस की डेफिनेशंस को तैयार कर सकें, इनको अंडरस्टैंड कर सकें। थैंक यू। प्लीज़ अब ब्रांचेस को देखते हैं। सबसे पहले हम ब्रांच देख रहे हैं बायोलॉजी की, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ living organisms. We study form and structure of living organisms. That kind of biology is termed as morphology. Anatomy, the study of internal structure. The study of internal structures is called anatomy. Simple, very simple. The study of internal structure is termed as anatomy. Histology, if we have to consider the histology, simply microscopic study of tissues. टिश्यूज़ को आप बेहतर तौर पे जानते हैं, जो बिकॉज हम पहले छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं कि टिश्यूज़ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर परफॉर्मिंग सेम फंक्शन. देन सिंपली वी से दैट माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज टर्म्ड एज हिस्टोलॉजी. देन सेल बायोलॉजी. सेल बायोलॉजी इज द branch of biology in which we study structure of cell, function of cell and cell organelles. Structure and function of cell and cell organelles, as well as one other thing, that is the cell division is also a part of cell biology. Simply हम कैसे define करेंगे cell biology को? Cell biology is the branch of biology in which we study the structure and functions of cell and cell organelles. It is also one other thing included, that is the cell division. Cell division is also studied under the platform of cell biology. Physiology, this branch deals with the study of function of different parts of living organism. In so much simple way, study of functions of different parts ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, जो मुख्तलिफ हिस्से हैं, जब उनको हम स्टडी कर रहे हैं तो वी आर स्टडीइंग द फिजियोलॉजी.
Genetics is the kind of biology, is the branch of biology in which we study genes and their role in inheritance. Simply we say that genetics is the branch of biology in which we study genes and their role in inheritance. अब यहाँ पे एक छोटी सी टर्म यूज हुई है, इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं. इनहेरिटेंस को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, कि जो वालिदैन से कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जैसे आँख है, रंगत है, ठीक है जी, स्किन की रंगत है, बालों के बाल हैं, किस रंग में हैं, किस स्टाइल में हैं. नेक्स्ट एम्ब्रियोलॉजी है. इट इज़ द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ embryo to new individual. Study of embryo to new individual is termed as embryology. Taxonomy, it is a branch of biology in which we study the naming and classification of organisms into groups and subgroups. Paleontology, very simple. It is the study of fossils. It is the study of fossils. अब यहाँ पे बात कर लेते हैं fossils के. Fossils are the remains of extinct organisms. कि ये वो ऑर्गेनिज़म जो ख़त्म हो चुके हैं, ज़मीन से नपेद हो चुके हैं, अब ज़मीन पर उनका वक़ू नहीं है और उनकी बोन्स, उनके बॉडी ज़मीन के अंदर, पत्थरों के अंदर, पहाड़ों के अंदर मदफन है. जब हम फॉसिल्स को स्टडी करेंगे तो सिंपली क्या करें हम? वी आर स्टडीइंग द पैलेontology. Environmental biology, it deals with the study of interaction between the organisms and their environment. Environmental biology, simply we say that interaction between the organism and their environment. Sociobiology, this branch deals with the study of social behavior of animals that make societies. कि सोसाइटी में एनिमल्स का, ऑर्गेनिज्म का जो बिहेवियर है अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ अपनी पॉपुलेशन में, इकोसिस्टम में, ये जो पार्ट है ये सोशियोबायोलॉजी में आ जाएगा. पैरासाइटोलॉजी, वेरी सिंपल. दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स. दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स. और पैरासाइट्स क्या हैं? पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो होस्ट से अपनी खुराक लेते हैं और इन रिटर्न उसे नुकसान, उसके लिए हार्मफुल होते हैं. बायोटेक्नोलॉजी is the branch of biology in which we study practical application of living organism to make substances for the welfare of mankind. Simply, अगर simple scenario में देखें तो use of microorganisms for the welfare of mankind is termed as biology. Immunology, it is the branch of biology in which we study the immune system of animals which defends the body against invading microbes. Entomology, it is the study of insects. Study of insects is termed as entomology. Pharmacology, it is the branch of biology in which we study the drugs and their effects on the system of human being. अब जब हम ड्रग्स और उनके इफेक्ट्स को ह्यूमन बॉडी सिस्टम के ऊपर स्टडी कर रहे हैं तो दैट इज अ पार्ट ऑफ फार्माकोलॉजी. बायोकेमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ लाइक वाटर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो अब बात करते हैं एवोल्यूशन के हवाले से कि आपको ये लेसन कितना समझ आया, कहाँ तक समझ आया, उस चीज़ को देख लेते हैं. मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो अबाउट पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइट्स? डू यू नो अबाउट पैरासाइट्स? सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अबाउट फॉसिल्स. जस्ट आपने करना क्या है, फॉसिल्स की अगर डेफिनेशन आपको समझ आ गई है तो आपने इसको कमेंट्स में मेंशन कर देना. और थर्ड वन क्वेश्चन है, वुड यू लाइक टू शेयर अबाउट एंटोमोलॉजी. आपने क्या करना है, कमेंट्स में एंटोमोलॉजी की डेफिनेशन को पुट कर देना. मैं अंडरस्टैंड कर लूँगा कि आपको समझ आ गई. और
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्लीज़ डिफाइन जेनेटिक्स।